Today I am going to explain you one of the famous poem of Robert Frost. The name of the poem is Fire and Ice. This poem is also given in 10th class book. It is part of the poem which we have discussed that day, that was The Dust of Snow. Now on screen you can see fire, and next picture you can see it is of ice. So the theme of the poem is mainly based on these two symbols. The poet Robert Frost feels that one day the earth, our world, will come to an end because of fire or because of ice. Now we will see poem. It is based on assumptions of the poet as well as on his imagination. Now you can see on your screen, some say the world will end in fire. Some say in ice. Poet Robert Frost is telling here. Some people, they are saying that one day the world will end in fire. Some say in ice, and some people believe that it will end in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So Robert Frost is telling here that I have tasted of desire, means he is known and he is familiar with desires, because he is comparing fire with desire. He is telling fire is burning desire. Mainly nowadays people, they are moving behind materialistic things. They are moving behind different materialistic things, and because of that only, because of that burning desire, he is telling that I have tasted desire, so I am going with the views of the people, those who favor fire. I believe that really they are telling true. I agree with them that one day world will end in the fire because of this desire. So fire, it symbolizes desire here. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say for destruction ice is also great and would suffice. But here the writer is telling that in second stanza, that if it had to perish twice, perish means die. If this life it had to die twice, I think enough of hate. I know hate is also enough to destroy this world. To say that for destruction ice is also great, he is telling that ice is also great, it can also destroy this earth or this world. This in first stanza I told you fire, he is using to symbolize desire, and here he is using ice to symbolize hate. Means when people will hate each other, they will not have sensitivity or emotions for each other. They will not pay attention towards each other, or they will have hatred or indifference among each other, or coldness towards relationship. So definitely world will end. That hate is also suffice means it is also sufficient. So from this 8 lines poem, poet has given a detailed account that how our world can go to an end one day. So how he is telling, again I am explaining in Hindi. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग कहते हैं कि एक दिन ये दुनिया आग में ख़त्म हो जाएगी. सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं कि ये बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी, ठंडक से ख़त्म हो जाएगी. लेकिन पोएट यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैंने तो डिज़ायर्स को चखा हुआ है, मतलब मुझे तो पता है कि अगर हमें बहुत सारी इच्छाएं हों, बहुत सारी लालसाएं हों, तो हमारी दुनिया ज़रूर एक दिन ख़त्म हो जाएगी. तो यहाँ पर वो इच्छा और लालसा से आग को कंपेयर कर रहा है. फिर दूसरे स्टैंजा पे हम चलते हैं. तो यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको दोबारा भी मरना हो तो ये अर्थ जो है, ये वर्ल्ड जो है, इसको मारने के लिए हेटरेट, किसी से नफ़रत ही काफ़ी है. तो वो बोल रहे हैं टू से दैट फॉर द डिस्ट्रैक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट. वो बोल रहे हैं आइस भी इनफ है,
आइस भी सफिशिएंट है डिस्ट्रक्शन के लिए। तो यहाँ पर वो आइस को हेट्रेड से कंपेयर कर रहे हैं। तो इन 8 लाइंस में पोएट ये सब बताना चाह रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, या हमारी वर्ल्डली डिज़ायर्स हैं, हमारी इनसेंसिटिविटी है, हमारी इनह्यूमन बिहेवियर है, क्रुअल्टी है, इनटॉलरेंस है, इनसेंसिटिविटी है, हेट्रेड है, इंडिफरेंस है, ये सब तो हमारे आइस में आ जाएंगे। और इन सब में इतनी पावर है कि ये सब दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। इसी तरह फायर में वो बोल रहे हैं किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लालच होना, किसी चीज़ के लिए गुस्सा होना, एंग्री होना, भूख होना, किसी चीज़ के लिए लस्ट होना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा गहरी डिज़ायर होना, ये सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना, ये सब फायर की निशानी है। और फायर में भी उतना पावर है कि वो इस दुनिया को ख़त्म कर दे। तो ये छोटी सी पोएम से बहुत गहरा मीनिंग बता रहे हैं हमें यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कैसे पोएटिक डिवाइसेस, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस उन्होंने लिए हुए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ फर्स्ट लाइन, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। आप यहाँ देखिए सम से जो होता है यहाँ पर फर्स्ट लाइन में रिपीट हुआ है, सेकेंड लाइन में रिपीट हुआ है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। तो इसको हम बोलते हैं एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा होता है रिपीटेशन। एनाफोरा होता है रिपीटेशन ऑफ वर्ड और एक्सप्रेशन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सम पोएम्स। तो ये इस पोएम का फर्स्ट पार्ट है। इसकी फर्स्ट 2 लाइंस में ये 2 एक्सप्रेशंस और ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, सम से। इसको हम एनाफोरा बोलेंगे। ये इसका फर्स्ट पोएटिक डिवाइस है। अब हम अगर दूसरे पोएटिक डिवाइस की तरफ जाते हैं तो दूसरा पोएटिक डिवाइस हम देखेंगे यहाँ पर 4th लाइन देखिए, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। होल्ड में ओ आ रहा है, दोज में ओ आ रहा है, हु में ओ आ रहा है, फेवर में ओ आ रहा है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब कोई वॉवेल साउंड अंदर किसी वर्ड के अंदर अगेन एंड अगेन रिपीट होता है तो उसको हम बोलते हैं एजोनेंस। तो ये है एजोनेंस। इस लाइन में एजोनेंस का यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस था एनाफोरा, सेकेंड था एजोनेंस। अब हम थर्ड पोएटिक डिवाइस अगर देखते हैं तो थर्ड पोएटिक डिवाइस भी हमको इसी लाइन में मिलेगा। देखिए, फेवर, फायर, ये दोनों कंसोनेंट्स हैं और ये रिपीट हुए हैं। तो ये पोएटिक डिवाइस कौन सा पोएटिक डिवाइस है? एलिटरेशन। ये है एलिटरेशन। तो हमने यहाँ पर 3 पोएटिक डिवाइस देखे अभी, एजोनेंस, एनाफोरा, एलिटरेशन। अब अगला पोएटिक डिवाइस हम देखेंगे इमेजरी। अब इमेजरी भी मैंने आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। जब हमारे माइंड में कोई इमेज बहुत अच्छे से क्रिएट होती है, किसी चीज़ की इमेज हमारे माइंड में क्रिएट होती है, जब हम कुछ पढ़ते हैं उसकी विजुअल इमेज को क्रिएट होना हम बोलते हैं इमेजरी। तो पोएट ने इतनी अच्छी इमेजरी यूज़ की कि हम हमारी इमेजिनेशन में इसको इमेज करके हमारी माइंड में कुछ इमेजेस फॉर्म हुई हैं यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको एक और बता चुकी हूँ, सिम्बोलिज्म, बस नाम नहीं बताया था। फायर को उन्होंने सिम्बोलाइज़ किया है डिज़ायर से और आइस को सिम्बोलाइज़ किया है हेट से। अब नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब कोई इनएनिमेट थिंग होती है, मीन्स जो कि नॉन लिविंग थिंग होती है और उसको हम ह्यूमन क्वालिटी देते हैं। जैसे कि यहाँ पर फायर है और हेट है। फायर और हेट ये दोनों ह्यूमन बीइंग्स नहीं हैं, बट इनमें इतना पावर है कि ये इस अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ किया गया है। अब हम लास्ट थिंग देखेंगे इसकी राइमिंग स्कीम। आपको राइमिंग स्कीम देखना भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एक बार आप देखिए, फायर, आइस, डिज़ायर, फायर।
फायर को हम ए देंगे, आइस को बी देंगे, डिज़ायर फायर राइमिंग है तो ए है, फिर से फायर है तो ए है, ट्वाइस किससे साउंड सेम हो रहा है, आइस से तो बी है, हेट किससे साउंड मैच हो रहा है, नहीं हो रहा है किसी से, तो ये क्या हो जाएगा सी, आइस फिर से बी, और ग्रेट, ग्रेट और हेट सेम हो रहा है तो सी, और सफाइस बी। तो इसकी राइमिंग स्कीम हुई ए बी ए, ए बी सी, बी सी बी। ओके, तो राइमिंग स्कीम है ए बी सी, बी सी बी। तो इस शॉर्ट पोएम से हमको राइटर यही बताना चाह रहे हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, लेकिन ये है कि हमारा जीवन जो है इन दो चीज़ों से नष्ट हो सकता है। अगर साइंटिफिकली सोचा जाए तो या तो ग्लोबल वार्मिंग से ये ख़त्म हो सकता है, तो उसको हम फायर से कंपेयर कर सकते हैं, और आइस से मीन्स कोल्डनेस, जब हम बिल्कुल इनसेंसिटिविटी हो जाएगी, इनसेंसिटिव हो जाएंगे एक दूसरे के प्रति, हमारे पास कोई इमोशंस नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हर चीज़ में ठंडा हो जाएगा, तो भी अर्थ ख़त्म हो सकता है। तो ये दो सिंबल्स यूज़ किए गए हैं, फायर और आइस, और ये पोएम है हमारी फायर एंड आइस, और इस तरह से हमारा वर्ल्ड डिस्ट्रक्ट हो सकता है फायर एंड आइस से। Thank you so much for watching my channel. If you liked my video, please subscribe it. Please like my video. If you don't like it, and if you want anything to ask, so you can post a comment in a comment section. Thank you.